Hi everyone, I'm trainer at Global Pharma Academy, and I'll share my screen to give you a short presentation. Sorry for the interruption, sir. I just want to add few things. Students, you can ask the question at the end of the session because we are giving you the opportunity to ask your queries. So no need to be worried. You will given 10 to 15 minutes for clearing your doubts. So just hold your queries with you. At the end of the session, we'll ask you. Thank you. Over to you, sir. Thank you. I hope you can see my screen. Everyone can see my screen. Yes, sir. Okay. I just request you all to be on mute if you're not speaking. All right. Thank you. So today's focus is about SaaS. So in pharma, we have multiple divisions and multiple processes, and SaaS is exceedingly growing well, and it has lots of opportunities. We have seen in the recent years as well. But when students are learning about pharmacy and other streams like BSc in botany or BSc in zoology, chemistry, like if they have biosciences background, most of them do not know what is SaaS. So we have prepared a small presentation for that to give you some information on SaaS. So SaaS is statistical analysis software, SAS. That's what SaaS is, and it's a suite of multiple softwares put together, and it is developed by SaaS Institute. That's the name of the company organization that has developed SaaS. It is used for data management, advanced analytics, multivariate analysis, business intelligence, criminal investigation, and predictive analytics. So it is not just limited to clinical SaaS. It's used in banking domain. Uh, if it's in investigation domains as well, in gambling domains as well, sports domains as well. So there are multiple domains where this is being used, but today's focus is clinical SaaS. As for the background that you carry, uh, for life sciences background that you carry, the main focus would be clinical. It will help you get into SaaS easily. So which domain SaaS has been used? It's clinical research, banking, data mining, business intelligence, predictive analytics, multivariate analysis, and more. Like I said, in sports as well. So what is clinical SaaS? Clinical SaaS is application of SaaS technology to clinical domain for clinical trial data analysis in pharmaceutical industry, biotech industry, and clinical research companies, and to submit collected data to FDA. So if you have any idea about how clinical trial works, it's before any medicine is introduced into the market, uh, it has to be tested. First, animal testing is done, then there are multiple phases from 1 to 4, where the drug is tested in human trials on humans, and the data that is collected needs to be presented to Food Drug Association, that is FDA, US FDA, in a particular format, uh, and that format they accept in if it is created through SaaS. So they give preference to FDA gives preference to the data that has been collected and created in SaaS. uh, so that's why SaaS is kind of popular for US, for this domain. And then we have CDX standards and regulations are being used to submit clinical data to FDA. So when you talk about clinical SaaS, it's not just the programming. You need to be aware of the domain as well. Domain, CDX standards. We have different standards to be followed to create particular data and how to present it. So those standards need to be followed, and along with that you need to have hands-on experience on programming so that your job gets easier. So why clinical SaaS? Data security and integrity.
So the data that is created and processed through SaaS has data security and integrity. SaaS works on multiple domains, multiple platforms. We have Windows SaaS, Unix SaaS as well. Unix is the most secure platform if you know about that, and it can handle analyze large amount of data. It can generate version 5 transport file format files recommended by FDA while submission. So this is very important as FDA recommends SaaS, and system standardization can be achieved as recommended, can be used to generate reproducible results. So there is a consistency if you create a program in SaaS and then try to reproduce it, there will be a consistency in the results. So it is most trusted software. So content of clinical analysis. The clinical analysis, there are two parts. As I said, it's SaaS software will cover the programming, coding and all, and CDS standards where you need to have domain knowledge. And there are two types of standards. One is SDTM, that is study data tabulation model, and one is ADAM, analysis dataset model. So these, there are, it's like how the data should be represented, what columns and what rows should come, that is defined in these two standards, SDTM and ADAM. And to achieve these the results, how the data should look like, you need to use SaaS software that contains three components. One is base SaaS, SaaS macros, SaaS SQL. So SaaS macros and SaaS SQL are covered in advanced SaaS. So one is base SaaS and one is advanced SaaS. Why CDX standards? To streamline the exchange of clinical and non-clinical research data and ensure uniformity across studies submitted to the US FDA. So what happens is there are multiple organizations like pharmaceutical companies that are working on a particular drug. Let's suppose take diabetes. If they are trying to develop a medicine on diabetes, they will conduct human trial on subjects, on patients, and then collect that data. But the data that they collect would be in different format. Like just a simple example, like if they want to collect name of the patient, one organization may collect it as like John Jefferson, first name and last name, John Jefferson. But another might collect it as Jefferson John. So they're both collecting name, but one has first name as in the first and then last name. But another organization has collected it as last name first and then followed by the second name, the first name. So in that case, if this data is submitted to FDA, that would not be consistent to check the results across all the submissions that they have received. So if they receive a data in particular formats as defined by a standard, like there needs to be only first name first and then last name. In that format, if they get data for everyone, it would be an easier task for them. So that's why these standards have come in place to have to ensure the uniformity across all the submissions. And has the CDEX has, this is the full form of CDEX, Clinical Data Interchange Standards Consortium, has developed data exchange standards to streamline clinical research and enable connections to healthcare. So designations and roles that we have in SaaS, in clinical, there are two types: clinical database programmer. This types of the programmer supports CDM, that is clinical data management. They create raw the data review listings, generate data discrepancy reports, missing pages reports, patient profile reports as per CDM review and requirements. So this kind of role that we have, clinical database programmer role or clinical programmer role, that mostly deals in generating reports, and those reports are important for clinical data management to resolve discrepancies
if data is not properly fed into the system and there are some issues with the data, to identify that, clinical SaaS programmers help by generating different type of reports. The second profile, which is more in demand and has more respect, is statistical programmer. What they support do is they support biostatisticians. They convert raw data sets into SDTM add-in standards format as series standards and generate tables, listing, graphs, define.xml. So this is final output: table, listing, graphs, and define.xml. This is submitted to US FDA for approval of a particular drug. So that's why they are in high demand, statistical programmers. But you'll get to learn more things in clinical database programmer. So if you get a chance to enter into clinical domain, uh, I would recommend this is an easier way of getting into clinical as a clinical SaaS programmer. You'll get to learn a lot of things. So just kind of eligibility criteria to be a SaaS programmer, we have noted this down. Hands-on SaaS programming knowledge, SaaS certifications, has additional knowledge. So SaaS programming knowledge, whenever you learn things, you either memorize it or go through notes and all, try to memorize it. But programming is such a thing that you just can't keep on going through your notes. You'll have to do hands-on practice. So through that way, it will be easier for you to fit in your head that how things work. The second is SaaS certification. SaaS certification is initiated by SaaS Institute, the organization that has developed SaaS programming. So there are in clinical research, we have three certifications. One is base SaaS, one is advanced SaaS, and third is clinical trial professional SaaS programmer. So at least when you go for a job search, make sure you have at least base SaaS certification available with you. That will be an added advantage on your CV. See, maybe 100 of candidates who have learned SaaS, they apply for job, but only a few go for base SaaS certification or any SaaS certification. And if you have that, that will stand you apart in the crowd. So make sure that after finishing your SaaS programming course, please do the SaaS certification, at least base SaaS. Then knowledge of clinical research is important. So what is clinical research or clinical trial, and what are the phases involved, and most the common documents that are used in clinical trials. Clinical data management system, what are those, and the databases used in clinical trials, and knowledge of CDISC or CDAS standards, that standards that I told you about. If you have a good knowledge of that, that will be very helpful to get a job. Now, who hires stat programmers or SaaS programmers? There are multiple companies. So all the pharmaceutical companies, they need SaaS programmer. Uh, Most of them outsource this work to IT companies like TCS, Cognizant, Accenture, and all. Uh, Apart from that, there are also CROs, contract research organization. These are mentioned here. So, so these contract research organizations like ClinPace, Icon, MedPace, PPD, PRA Health, Parexel, Syneos, IQVIA, they get a contract to perform the data analysis from these pharmaceutical companies, and they also need SaaS stat programmers. So there are many opportunities. It's I wouldn't say it's very easy to get into SaaS for freshers, but you need to have good knowledge, good practice. There are opportunities for you know uh, in the recent years, I have seen opportunities for freshers as well. And if you have good knowledge and hands-on practice and SaaS certification with you, you can get into SaaS. But our focus is, I would recommend is stay into
analytics field, because if you have seen the news, or if you can even search on Google, data is the new oil, they say. So the oil industry that flourished years ago, it's like that only. So uh, daily huge amount of data is getting generated through many platforms. Even if you take social platforms like Facebook and Twitter and all, huge amount of data is getting generated, and to manage that data, uh, we need analysis tools, and this is one of them, like SAS, statistical analysis. And there is no alternate to SAS as of now. So so all the clinical research industry, they heavily rely on SAS software only. So if you're taking a step towards learning SAS, it's a good decision. The interview structure, this what we have seen mostly in through our experiences and our colleagues. There's a screening round where candidate is screened with respect to experience and roles of for the roles of responsibilities. Then technical rounds where you might be asked to write short code, a simple code, and discussion on your prior work experience. Or if you don't have work experience, they will be heavily asking you questions about SAS knowledge, your SAS knowledge, and then the HR round. So this kind of interview structure that we have. So in our industry, what all we cover is we cover base SAS, SAS macro, SAS SQL, basics of clinical domain, and introduction to the standards that I talked about, CDS standards. Course structure and duration. So we have duration of 4 months for weekly batches, 6 months for weekend batches. What all we provide is we provide SAS software for practice. We also provide data for practice, documents to refer to, good hands-on practice on data. That this is what you need to do on your own. We are there to help you uh, through every doubt and whatever difficulties you have, but it's your responsibility and your commitment should be there to make sure that whatever session that we take, before the next session you do the hands-on practice and go through the reference documents, and whatever doubts you have, we can cover it in the next session. We also help you with the interview, mock interview, and job focus training, and that's the interview assistance that Global Pharma Academy provides. So this is all for regarding SAS, and if you have any questions, I can take those up. Yes, students, any questions you have? Yes, sir. Hello. There is a question from Ubed, I think. हेलो सर। Yeah, hello. सर ये SAS जो कोर्स है इसको CPC सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है क्या? CPC मतलब? जो मैं कोडिंग के लिए मतलब रिक्वायरमेंट रहता ना, वो CPC रिक्वायर्ड, मतलब CPC सर्टिफिकेट रहा तो ही मतलब ज्यादा लोग प्रेफर करते, ऐसा सुना मैं। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। जो SAS उनके खुद के सर्टिफिकेशंस है, SAS इंस्टीट्यूट के। अगर आप SAS के साइट पे जाओगे तो पता चलेगा आपको। तो उनके मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के मल्टीपल सर्टिफिकेशंस है। लेकिन अपने इंडस्ट्री में जो चाहिए, अगर क्लिनिकल ही आप फोकस कर रहे हो तो बेस SAS, मतलब कोई भी डोमेन में जाओ, बेस SAS तो करना ही है। मतलब मैं खुद भी रेकमेंड करूंगा, क्योंकि बेस SAS का अगर सर्टिफिकेशन है ना, तो इंटरव्यूअर्स भी दे फील सेफ कि इसको नॉलेज है, इसने किया हुआ है। आप जब भी सर्टिफिकेशन करते हो, बेस सैस या रहे, एडवांस सैस रहे, सैस की एक डायरेक्टरी है, उस पे ऑनलाइन जाके फिर आपका नाम वहां पे आ जाता है क्लियर होने के बाद कि नाम ये है, और ये जो भी है पर्सन वो इंडिया से है, मुंबई से है, कहाँ से है, वो बिलोंग करता है, उतना डिटेल्स आ जाते हैं। तो इफ दे वांट टू चेक दैट अप, वो लोग वो भी चेक कर सकते हैं कि आपने सच्ची में सर्टिफिकेशन किया है कि नहीं। लेकिन सर्टिफिकेशन एक प्रूफ हो जाता है कि आपको नॉलेज है और आता है आपको सास।
तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि क्यों मैंने जैसे सिनेरियो कहा कि 10 लोग अप्लाई करते हैं, उसमें से अगर 2 लोगों ने सर्टिफिकेशन किया है तो दे विल प्रेफर दोस 2 पीपल। क्योंकि कैसे है, लोगों के पास ना यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं है सब कुछ सिखाते बैठने का वगैरह, तो जितना जल्दी जल्दी वो लोग पिकअप कर सकते हैं उतना जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। तो सर्टिफिकेशन है उसका मतलब आपको आता है, आप ट्रेंड हो अच्छे से, तो आपको अगर ले लिया तो आपके ऊपर ज्यादा टाइम बिताना नहीं पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को, और आप जल्दी सीख के आगे बढ़ सकते हो। सर और एक डिपार्टमेंट है ना सर, मेडिकल कोडिंग बोल के, उसमें लगता है सर, ऐसा सुना मैं, सीपीसी सर्टिफिकेशन, तो इसमें भी लगता है क्या, पूछा मतलब। ओके ओके, नहीं यहाँ पे इसका तो लगेगा अपना, मतलब सास का बेस सास का रहेगा तो अच्छा है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा तो होगा नहीं, लेकिन रहेगा तो आपको जॉब हंट करने में वगैरह तकलीफ नहीं होगी ज्यादा। सर और एक अभी जो नए अभी जैसा आईटी में है, अभी पहले मतलब ज्यादा लोग सी सी प्लस प्लस जावा वो यूज करते थे, अभी नया सॉफ्टवेयर आया पाइथन बोल के, अभी थोड़े दिन के बाद नया आएगा। अभी अभी हमारे हम्म। क्लिनिकल में अब यही रहेगा क्या, और नया मतलब आगे चल के और नया लैंग्वेजेस आने वाले हैं क्लिनिकल के बेस के ऊपर? नहीं वैसे नहीं है, अभी कैसे है कि वो तो आते ही रहेगा, और अच्छा। आप जब भी, आप पहले ये दिमाग अपना सेट कर लो कि आप अगर आईटी इंडस्ट्री में आ रहे हो, क्योंकि क्लिनिकल मतलब सास प्रोग्रामिंग में अगर आ रहे हो तो वो हो जाता है लाइफ साइंसेस आईटी डिपार्टमेंट। तो आप अगर ये इंडस्ट्री में आ रहे हो तो आपको खुद को अपग्रेड करते रहना ही है। अभी सास का कैसा है, सास प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, मतलब उसको कोई ओन करता है। तो अगर सास चलाना है, मतलब एक सपोज जीएसके ले लेते कंपनी, जीएसके को अगर सास चलाना है, उसके उसको यूज करना है, तो सास इंस्टीट्यूट को लाखों में पैसे देने पड़ते हैं एक यूजर के लिए। तो वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। और कैसे है कि कोई सॉफ्टवेयर आ जाएंगे कि आप पाइथन बोल रहे हो, या अभी एक ऑप्शन है आर का, आर लैंग्वेज करके, अगर वो भी आता है तो वो फ्री सॉफ्टवेयर से, तो उसका कैसे है कि सेफ्टी नहीं है वहाँ पे फ्री सॉफ्टवेयर होने की वजह से। तो किसी ने हैक कर लिया या कुछ हो गया डेटा का, और ये हम जो भी काम करने वाले बहुत कॉन्फिडेंशियल डेटा रहता है पेशेंट का, अगर वो यस। कहीं पर भी लीक हो जाता है तो बहुत बड़ा मतलब इशू हो सकता है, कोर्ट में केसेस, ये वो कंपनी का नाम बदनाम वगैरह। तो इसलिए इसकी वजह से वो लोग साफ सास जो सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट है उनके ऊपर बहुत हेविली रिलाई करते हैं। और सास ऐसा नहीं है कि यार कोई आज उठ के कोई आ गया आर लैंग्वेज आ गया यार पाइथन लैंग्वेज आ गया और हमारा बिजनेस बंद हो गया, ऐसे हाँ नहीं सर, वो नहीं लोग। सर, नए नए अपग्रेड होते रहते हैं, नए नए फीचर्स आते रहते हैं, तो हम्म सैस हम्म भी हम्म। अपडेट करते रहता है क्या, वही मतलब पुराना ही देता है उतना ही? मतलब क्यों नहीं बोले तो नहीं। नए नए, हाँ सर। हाँ कहिए कहिए। हाँ, नए नए सॉफ्टवेयर आते रहते हैं, अभी अभी आईटी में तो बहुत मतलब साल में एक बार नए नए आ रहे हैं, मतलब हमारे क्लिनिकल में तो यही रहेगा, मतलब अभी तो मतलब यही चल रहा है मतलब। हाँ फिलहाल तो यही चल रहा है, और आर का थोड़ा सा है, मतलब लोग आर के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ सक्सेसफुल हुआ नहीं है। जिस तरीके के रिपोर्ट्स सास में डिजाइन होते हैं और यस। एफडीए उन्हें एक्सेप्ट करता है, वैसा अभी तक आर प्रोड्यूस कर नहीं पाया है। तो आर को भी अभी तक अप्रूवल मिला नहीं है, कोशिश चल रही है लेकिन मिला नहीं है। और जो आप बोल रहे हो पाइथन वगैरह, तो इस इनका जो इंटीग्रेशन है, अभी देखिए पहले मोस्टली जो लोग काम करते थे एसक्यूएल ज्यादा चलता था, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। यस। तो एस सास ने क्या किया, एसक्यूएल को इंटीग्रेट कर लिया। अभी आपको अगर एसक्यूएल में कोड लिखना है, तो एसक्यूएल वाले प्रोग्रामर्स है वो भी सास में आना शुरू हो गए। तो सास में अगर एसक्यूएल में कोड लिखना है तो सिर्फ आपको प्रॉक एसक्यूएल करके एक स्टेप लिखना है, उसके बाद आप पूरा कोड एसक्यूएल में लिख सकते हो। तो कैसे हो गया, वो इंटीग्रेशन हो गया। और वैसे अभी सास और पाइथन का भी इंटीग्रेशन चल रहा है, मैंने ऐसे सुना है, मतलब मैंने रिसर्च तो नहीं किया है, लेकिन सास और पाइथन का भी इंटीग्रेशन चल रहा है। तो जैसे जैसे ऐसे नई टेक्नोलॉजी आएंगी और अगर इंडस्ट्री एक्सेप्ट करना शुरू करती है तो सास भी खुद को अडॉप्ट करना। अडॉप्ट अपग्रेड कर लेगा, क्योंकि उनको भी सर्वाइव करना है, उनका भी बिजनेस है। हाँ सर। अभी ये कितने दिन से है सर, सैस बहुत पहले से है क्या मतलब? 1960s में 60 फर्स्ट जनवरी हाँ। 1960 को वो स्टार्ट हुआ, और यस। वहां से अभी तक है, ऐसे ही चल रहा है। तो वही है, इम्पोर्टेंट ये है क्लिनिकल के लिए कि इनका डेटा इंटीग्रेशन जो है, सेफ्टी, डेटा डेटा का सेफ्टी, और जो रिजल्ट्स वो बार बार प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जिस तरीके के रिजल्ट्स यूएस एफडीए एक्सेप्ट करती है उस तरीके के रिजल्ट्स ये लोग प्रोड्यूस कर सकता है सॉफ्टवेयर, इसलिए उसको प्रेफर किया जाता है।
मतलब हर चीज में सर यूएस एफडीए ही पर्टिकुलर, मतलब जो भी हो, मतलब अभी ये सैस का हुआ जो मतलब क्लिनिकल ट्रायल, तो मतलब यूएस एफडीए की क्यों मतलब ज्यादा प्रेफर करते हैं सर? देखिए अभी यूएस एफडीए कैसे, अब हमारे पास जो भी काम आता है मोस्टली यूएस फार्मास्यूटिकल कंपनीज का आता है। अच्छा अच्छा। अपने इंडिया में तो ज्यादा इतना आर एन डी हो नहीं रहा है कि नया कोई ड्रग डेवलपमेंट वगैरह हो, कोई कंपनी ऐसे हाँ है नहीं। तो जो हाँ भी मोस्टली ये जो भी होता है ड्रग डेवलपमेंट, वो यूएस में या यूरोप में या जापान में होता है। और उनके उनके जो कंट्री के अथॉरिटीज रहती है, जैसे यूएस का यूएस एफडीए, यूरोप का आई थिंक पीएमडीए या कुछ तो है, ईएमईए, सॉरी ईएमईए है। और जापान का या चाइना का पीएमडीए करके है। तो यस। जिस कंट्री में वो ड्रग बनता है वहां पे अगर मार्केटिंग उनको करना है तो उनको रिजल्ट सबमिट करने होते हैं। तो यूएस का कंपनी है, उन्होंने हमें काम दिया है, आउटसोर्स किया है इंडिया में। तो वो पूरा स्ट्रक्चर सबमिशन बना के यूएस एफडीए को सबमिट होता है। फिर वो लोग अप्रूवल देते हैं, उसके बाद उसका मार्केटिंग, मतलब मार्केटिंग के लिए अप्रूवल मिलता है कि ये ड्रग अभी हम लोग मार्केट कर सकते हैं। इसलिए यूएस एफडीए के ज्यादा काम इसलिए ज्यादा बोला जाता है क्योंकि यूएस से हमें ज्यादा काम आता है इंडिया में। अच्छा अच्छा। मतलब सर ये सैस बोले तो मतलब जितना भी जो क्लिनिकल रिसर्च का जितना भी डाटा है, मतलब वो सब कोडिंग में कन्वर्ट करना है? हाँ, कोडिंग करके आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में करना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो अच्छा। दो कॉलम अगर बनाने हैं तो आपको डेटा कुछ भी आ सकता है, कैसे भी वो लोग कलेक्ट कर सकते हैं। जब वो लोग कलेक्ट करते हैं डेटा उनके सिस्टम में, तो किसी भी फॉर्मेट में रहता है। लेकिन उसको जब आपको यूएस एफडीए को देना है, एक ऐसे ख्याल कीजिए कि एक टेबल देना है उनको, टेबल बना के, जिसमें पहले कॉलम में फर्स्ट नेम होना चाहिए, दूसरे कॉलम में लास्ट नेम होना चाहिए। तो हम लोग SaaS सॉफ्टवेयर में वही करते हैं कि पहले कॉलम में फर्स्ट नेम लाया जाए, दूसरे कॉलम में लास्ट नेम लाया जाए, फिर वो टेबल हम लोग सबमिट कर देंगे यूएसएफडी को, ऐसे। अच्छा अच्छा। मतलब हाँ, मतलब थोड़ा इन डेप्थ बोले तो सही रहता था, मतलब मतलब चलेगा सर। नहीं, ठीक है। अभी आपको कैसे, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपको मालूम है क्लिनिकल ट्रायल के बारे में, तो मैं एक उस तरीके नहीं का सर, मैं एग्जांपल दे सकता मैं तो कोर्स ऐसा कुछ ज्वाइन नहीं किया, मैं तो फार्मेसी में हूँ, मतलब बी फार्म में हूँ, फाइनल ईयर। हूँ। ओके, तो आपको एडवर्स इवेंट वगैरह कुछ मालूम है? हाँ सर, मतलब हाँ बोलो सर, अभी कुछ बोलते तो। तो एडवर्स इवेंट का कैसे रहता है, आपके ऊपर अगर क्लिनिकल ट्रायल चालू है कि डायबिटीज का गोली लेके आपके बॉडी यस में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो अभी कलेक्ट करना है उसके रिजल्ट्स। यस। लेकिन गोली लेने के बाद आपको अगर बुखार आ गया, मे बी वो रिलेटेड नहीं है ये गोली से, जो आपने गोली लिया डायबिटीज का जिसके ऊपर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन बुखार आ गया तो भी वो यस। एडवर्स इवेंट कहलाता है कि आपने गोली लेने के बाद आया है इसलिए। तभी उसका अगर डेटा कलेक्ट करना है तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही कलेक्ट करना पड़ता है कि अ, अभी बुखार है, उसको हम लोग एई टर्म बोलेंगे, एडवर्स इवेंट टर्म। तो वो कॉलम का नाम जाएगा एई टर्म, उसमें फीवर करके आएगा। फिर आपका बुखार स्टार्ट कब हुआ, तो 2 तारीख को हुआ जनवरी के। तो वहाँ पे AESTDTC करके एक कॉलम बनेगा जहाँ पे एडवर्स इवेंट स्टार्ट डेट ऐसे रहेगा, और उसमें उसका डेट आएगा। तो डेट भी है वो जो पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही होना चाहिए। जैसे 02 जैन 2020, बीच में टी आएगा, टी फॉर टाइम। उसके बाद टाइम आएगा HHMMSS में। तो ये ऐसे इतना पर्टिकुलर फॉर्मेट रहना चाहिए। तो वो जो अच्छा फॉर्मेट्स डेवलप करना है वो SaaS सॉफ्टवेयर काम करता है, वो पर्टिकुलर फॉर्मेट्स और वो पर्टिकुलर टेबल वैसे बनाने का। अच्छा अच्छा। मतलब सर वो कोड हम लोग को याद रखना पड़ेगा, मतलब याद करना पड़ेगा जो पर्टिकुलर थोड़े थोड़े कोड्स रहते हैं? हाँ, याद मतलब अभी कैसे ना, SaaS फंक्शंस रहते हैं और प्रोसीजर्स रहते हैं। SaaS के दो SaaS इसलिए इजी है समझने में कि SaaS में ज्यादा, अभी आपने C## वगैरह सब बोला, उसमें डेटा टाइप्स जो है वो मल्टीपल है। टेक्स्ट का है, मतलब कैरेक्टर है, न्यूमेरिक है, फिर बुलियन हाँ आता सर। है। हाँ सर। सब फिर मिक्स रहता हाँ, तो काफी सारे हैं, लेकिन SaaS में सिर्फ 2 ही डेटा टाइप्स है, एक न्यूमेरिक है और कैरेक्टर है। उसमें ऐसे बुलियन या फिर वो डॉट वगैरह आता है नंबर के बाद न्यूमेरिक में वगैरह, वो सब ऐसे अलग अलग उसने डिवाइड नहीं किया है। सिर्फ एक तो कैरेक्टर रहेगा या फिर न्यूमेरिक रहेगा। कैरेक्टर मतलब जैसे नाम हो गया पूरा, जिसमें अल्फाबेट्स है, और न्यूमेरिक भी मिक्स है अगर, तो वो भी कैरेक्टर ही कंसिडर किया जाएगा। और न्यूमेरिक में सिर्फ न्यूमेरिक नंबर ही आएंगे, तो इसलिए वो है। समझना आसान है। सैस लैंग्वेज जिस तरीके से हम लोग लिखते हैं, उसमें आप कैपिटल में भी लिख सकते हो कोड, स्मॉल में भी लिख सकते हो। और जब आप सेमी कॉलन दोगे
आपका कोड लिखने के बाद, तब सैस को पता चलता है कि यहाँ पे रुकना है और ये पूरा एक स्टेटमेंट है कोड का। नहीं तो आप पूरा मल्टीपल लिखते जा सकते हो अलग अलग लाइंस पे, जब सेमीकोलन आएगा तभी वो रुकेगा। लेकिन बाकी के सॉफ्टवेयर्स में जो लैंग्वेजेस है उसमें इतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। पाइथन, अगर आप पाइथन की बात आपने की थी, वहाँ पे कैप्स में आप लिख नहीं सकते, लोअर लेटर्स में ही लिखना पड़ता है वहाँ पे। तो केस सेंसिटिव नहीं है सैस, बाकी के लैंग्वेजेस केस सेंसिटिव है। हाँ सर आप बेस बोले, बेस एडवांस ऐसा कुछ तो बोले ना सर, तो मतलब अभी लेते हैं हम तो हम लोग को तो मालूम नहीं चलता कौन सा उन लोग बेस पढ़ा रहे हैं क्या एडवांस, मतलब कैसे तो उसको आइडेंटिफाई करें, मतलब स्टार्टिंग तो बेस ही पढ़ना पड़ता हम लोग को। हाँ, बेस आपको पढ़ना पड़ेगा। बेस में क्या कवर होता है कि आप SaaS सॉफ्टवेयर जो है इंटरफेस उसका दिखता कैसे है, और हम लोग कैसे, मोस्टली हम लोग अभी कहते लिखते हैं कि ABC इज इक्वल टू PQR, तो हम लोग एंटर किए तो आपको एक नया टेबल दिखेगा जहाँ पे ABC का वैल्यू PQR करके आ रहा है। लेकिन एक्चुअली उसके पीछे क्या चल रहा है कि ABC का PQR में कन्वर्जन क्यों हुआ, वो सब जो होगा वो हमारे बेस सैस में कवर होगा कि बैकग्राउंड में क्या क्या चलता है। कि आप जब कोड टाइप करते हो, एंटर मारते हो, तो एंटर करने के बाद, एंटर की हिट करने के बाद एक्चुअली क्या क्या प्रोसेस होता है, वो डेटा लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम रीड करता है, और आउटपुट में एक एक रिकॉर्ड को कैसे लाके देता है, वो सब बेस सैस में कवर होगा। प्लस कुछ फंक्शंस है जो इम्पोर्टेंट है। अभी फंक्शंस मतलब, अभी जैसे मैंने आपको डेट का एग्जांपल दिया कि डेट उन लोग ने जब कलेक्ट किया, फार्मास्यूटिकल कंपनी ने, तो उन्होंने कैसे डेट कलेक्ट किया, 02/Jan/1990 करके, ठीक है। अभी अब हमें जो चाहिए फॉर्मेट वो है 02JAN1990, तो स्लैश नहीं चाहिए हमें। तो ये जो कन्वर्जन है, वो कन्वर्जन करने के लिए फंक्शंस यूज करने पड़ते हैं, डेट फंक्शन करके। तो ऐसे अलग अलग टाइप्स के फंक्शंस है। लाइक अगर मोस्टली यूएस मतलब एफडीए को जब हम लोग डेटा भेजते तो काफी वेरिएबल्स, मतलब काफी कॉलम्स रहते हैं, उनको कैपिटल लेटर्स में ही लगते हैं। तो वो अगर डेटा स्मॉल लेटर्स में कलेक्ट हुआ है तो उसको कैपिटल में कन्वर्ट के लिए अपर करके, अपकेस करके यूज होते हैं। जो आपने एक्सेल में देखा होगा, एक फंक्शन है अपर करके। अपर से क्या होता है कि स्मॉल केस वाला अपकेस में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे अपकेस करके है। फिर अगर डेटा, अभी अगर आप नाम नाम सोचो, जॉन जेफरसन मैंने जो बोला, तो वो साथ में आया हुआ है, कलेक्ट किया है डेटा में, फार्मास्यूटिकल कंपनी में साथ में कलेक्ट, जॉन जेफरसन, या सपोज जॉन कॉमा जेफरसन करके लिया है। लेकिन हमें जब यूएस एफडीए को डेटा देना है, उनको एक कॉलम में फर्स्ट नेम चाहिए, दूसरे कॉलम में लास्ट नेम चाहिए। तो अभी इन दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक फंक्शन आता है स्कैन या सबस्टर करके। तो हम लोग स्कैन यूज करके वो डिलीमीटर के पहले का, मतलब कॉमा ये डिलीमीटर है, उससे पहले का हम लोग जो डेटा है वो फर्स्ट नेम में डालेंगे, उसके बाद का डेटा है जो लास्ट नेम में डालेंगे। ये सर सब ये जो एडवांस में, फंक्शन। हाँ सर एडवांस में तो अब इससे एडवांस मतलब शॉर्टकट्स ऐसा कुछ अलग अलग आता है क्या सर, एडवांस मतलब नहीं, एडवांस एडवांस में मैक्रो आएगा जो ऑटोमेशन का रहेगा, या और एसक्यूएल आएगा। मैक्रो में क्या होता है, आपने एक कोड लिखा, जैसे मैंने आपको कहा कि डेट का कन्वर्जन करना है, तो वो हो सकता है एक जो डेटा हमारे पास आया है, ऐसे 25-40 डेटा आ सकते हैं। तो एक डेटा के लिए हम लोग ये कोड लिखेंगे कि वो डेटा का नाम लिखेंगे, उसके बाद डेट का कन्वर्जन का कोड, और उतना कोड लिखेंगे हम लोग। लेकिन आप अभी ऐसे तो नहीं कर सकते ना, 40 डेटा सेट्स आए, 40 डेटा आए हैं, तो हम लोग 40 बार वो कोड लिख नहीं सकते। तो उसके लिए प्रोसेस है, उसको मैक्रो बोलते हैं, जिससे क्या होता है, वो रिपीट करने वाला जो प्रोसेस है ना लूपिंग का, वो उसमें कवर हो जाता है कि सिर्फ आपको एक छोटा छोटा कोड लिखना पड़ता है, वो पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है बड़ा का बड़ा। ये मैक्रो में कवर होता है। और एसक्यूएल जो है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, वो हम लोग इसमें एडवांस साइंस में कवर करते हैं। लेकिन आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर सास का आप सोच रहे हो और आपको कोई कुछ भी नॉलेज नहीं है कोडिंग का, तो v3schools.com करके एक वेबसाइट है, WE डिजिट में 3 schools.com, वहां पे जाइए और एसक्यूएल वहां पे फ्री में आप सीख सकते हो। तो वो जरा सीखोगे तो आपको एटलीस्ट एक नॉलेज आएगा कि कोड लिखा कैसे जाता है। वहां पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, वो आपको बेहतर होगा। और इसकी वजह से दूसरा कोई भी लैंग्वेज, सैस ही नहीं, बाकी कोई भी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। और सैस सीखने में बहुत ईजी है, जिस जिस तरीके से आप लिखते हो
मतलब आप सोचते हो कि हाँ पहले मुझे टेबल बनाना है, तो आप पहले टेबल का नाम दोगे, टेबल का नाम एबीसी होना चाहिए, उसके बाद उसमें कॉलम क्या क्या लेना है, ऐसे ये स्ट्रक्चर में ही आप सोचते हो, और वो स्ट्रक्चर में ही आपको लिखना भी है, सिंपल लैंग्वेज में, सर सिंपल यस इंग्लिश लैंग्वेज में, कोई आप बड़ी हाँ बात नहीं है। हाँ सर कहिए। आप वो बोले ना V3 कौन सा बोले आप वी v3schools.com, WE सर डिजिट में 3 schools.com। यस हेलो हाँ हेलो। कहिए। हाँ सर, आप आपकी बता रहे आवाज नहीं थे आ रही। कि हेलो। हाँ अभी आ रही है। हाँ सर, आपने बताया था कि जैसे प्रोग्रामिंग वगैरह सीखने के लिए सर जो टेक्निकल बैकग्राउंड्स होंगे उनको प्रेफर ज्यादा करेंगे ना वैसे नहीं नहीं जॉब ऐसे के कुछ लिए। नहीं। मैं खुद बीएससी बॉटनी हूँ, बीएससी बॉटनी में मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, और फिर मुझे मतलब सैस के बारे में पता चला और मैंने सीखा, और उसके बाद मैंने एंट्री कर पाया। तो ऐसे कुछ नहीं है कि आपको अगर टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो आप कर नहीं पाओगे। आपकी अगर इच्छा है, आपकी पसंद है, कि इंटरेस्ट है आपको, तो आप कुछ भी कर सकते हो। ऐसे खुद को होल्ड करके मत रखिए पीछे कि ये नहीं आता है मुझे तो नहीं हो पाएगा ये तो वगैरह, नहीं हो ऐसे पाएगा दिमाग में वगैरह ऐसे सोचिए। दिमाग में सोचे आप कर सकते हो। कर सकते मतलब हो मैं मतलब खुद का मैं खुद एग्जांपल दे का रहा हूँ। एग्जांपल देना। हेलो। अच्छा तो सर जैसे तो आपने सर जैसे बताया आपने एसक्यूएल के बारे में, हम्म, तो सर उसमें मतलब किस लेवल पे मतलब कोडिंग वगैरह लैंग्वेज सीखना पड़ता है, जैसे बताया था आपने और लैंग्वेजेस भी हैं तो वो भी साथ में करनी पड़ेगी क्या? नहीं नहीं, मेरा एक रिकमेंडेशन है, अगर आप आपके पास टाइम है तो v3schools.com पे जाइए, और वहाँ पे एसक्यूएल के बारे में एक लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा, अलग अलग लैंग्वेजेस है उसमें, आई थिंक सी शार्प वगैरह भी है। लेकिन एसक्यूएल अगर आप सीखोगे, एसक्यूएल इज बेसिक लैंग्वेज, किसी भी डेटा सेट डेटा बेस में यूज होता है, डेटाबेस लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। उसका जिस तरीके का फ्लो है, जिस तरीके से उसको लिखा जाता है, उसी टाइप का फ्लो अपना सैस में भी है, और उसी टाइप का फ्लो हर मोस्टली हर लैंग्वेज में कवर होता है। तो आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी कि सैस अगर आप बाद में सीखना जब शुरू करोगे तो आपको चीजें फटाफट समझ में आएंगी। तो एक बार देख लीजिए अगर टाइम है तो एसक्यूएल। मैंने ओके। खुद मैं ने तो मैंने नहीं खुद सीखा ने तो था। नहीं सीखा था। अच्छा आवाज सर। एको हो रहा है आपके आवाज पास एको हो रहा है कुछ। आपके पास कुछ। हाँ सर एक हो रहा हाँ है थोड़ा। सर एको हो रहा था। हेलो। सर। हाँ हाँ कहिए। कहिए। सर अगर हमें इसकी ट्रेनिंग चाहिए हो तो उसके लिए फिर हम क्या करें? जैसे हम भी बीएससी माइक्रोबायोलॉजी से हैं और हमें सेस का कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो हम स्टार्टअप कैसे करें, स्टार्टिंग कैसे करें? हाँ तो मैं एक रिकमेंड तुम करूंगा, आप पहले जरा थोड़ा टाइम निकाल के v3schools.com पे जाके एसक्यूएल देख लीजिए, और सैस के लिए मैथ्स के अभी लिए अभी ग्लोबल फार्मर्स ग्लोबल एकेडमी में फार्मर्स ज्वाइन एकेडमी हो में सकते हैं ज्वाइन हो सकते हैं आप। आप म्यूट रख सकते आप हैं, म्यूट मेरा रख आवाज सकते हैं, मेरा आवाज आवाज एको हो रहा है। हाँ, ये जो है देखिए एसक्यूएल का ट्यूटोरियल है, यहाँ पे आपको एटलीस्ट आइडिया आ जाएगा कि एसक्यूएल क्या होता है। एसक्यूएल का देखिए इंट्रो वगैरह सब दिया है, सिंटैक्स कैसे लिखते हैं, सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है, हमारे यहाँ पे भी स्टेटमेंट्स रहते हैं। तो आपको थोड़ा एक आइडिया आ जाएगा एसक्यूएल की वजह से। और यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि नीचे एक बॉक्स आता है जहाँ पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, आपके रिजल्ट्स वहीं पर आ जाएंगे। ये देखिए एसक्यूएल एक्सरसाइज करके ट्राई योरसेल्फ, तो यहाँ पे आप ट्राई भी कर सकते हो, और आपके आंसर सबमिट करने के बाद आपको आंसर भी आ जाएगा, तो पता चलेगा कि आप ठीक से कर रहे हो कि नहीं। ये होने के बाद आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा, फिर सैस के लिए जुड़ सकते हैं आप ग्लोबल फार्मा एकेडमी से, मतलब अमित सर आपको उसके आगे जो भी है उसके बारे में बता सकते हैं। और फिर मतलब हम लोग सैस का आपका जो करियर पाथ है वो शुरू कर सकते हैं यहाँ से। क्लिनिकल मतलब ये सैस के लिए मतलब क्लिनिकल रिसर्च का थोड़ा नॉलेज होना कंपलसरी है क्या सर? यस यस डेटा यस मैनेजमेंट का, यस सीडीएम यस। का। सीडीएम का ऐसे नहीं, क्लिनिकल ट्रायल का नॉलेज की मतलब स्टार्ट कहाँ से होता है। तो सबसे पहले आईएनडी बोलते हैं ना, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग। तो वो पहले कैसे कैंडिडेट कैसे प्रोफाइलिंग होता है कि सपोज 10 ड्रग बनाए हुए हैं, उन लोगों ने सोचा है कि 10 कैंडिडेट्स है, मॉलिक्यूल्स है, जिसको हम लोग डायबिटीज के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन 10 के 10 वो लोग फाइनल नहीं करेंगे, 10 में से शायद एक करेंगे,
तो वो IND न्यू ड्रग एप्लीकेशन वगैरह वो सब होता है। उसके बाद फिर एनिमल टेस्टिंग होता है। तो Yes. एनिमल टेस्टिंग में एनिमल्स के ऊपर टेस्टिंग होगा, जो इंडिया में नहीं होता है। ये बाहर का ही बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे नहीं होता है एनिमल टेस्टिंग वगैरह, मना है यहाँ पे। तो एनिमल टेस्टिंग होता है, वहाँ पे टॉक्सिसिटी चेक की जाती है कि डोज कितना होना चाहिए। अगर ज्यादा डोज गया और एनिमल अगर मर गया, सपोज चूहे पे किया है तो चूहा मर गया, हाँ तो वो लीथल डोज है, उससे थोड़ा कम होना चाहिए। तो वैसे वैसे सब निकालते वो लोग। फिर एक बार वो एनिमल टेस्टिंग हो गया, फिर उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल के फेजेस आते हैं। फिर फेज 1 है, उसमें फेज 2 है, फेज 3 है, फेज 4 है। yes फेज 1 में क्या होता है, 100 से कम सब्जेक्ट रहते हैं उसमें, मतलब हेल्दी पेशेंट रहते हैं उसमें, हेल्दी सब्जेक्ट्स रहते हैं। जिसको डायबिटीज नहीं है उसको लेंगे वो लोग, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि कुछ एडवर्स इवेंट हो रहा है क्या। मतलब गोली खाने के बाद एक्चुअली वो क्या करना चाहिए गोली ने, कि अपना ब्लड शुगर कम करना चाहिए। लेकिन वो कम करने के वजह अगर उसको ज्यादा हेडेक दे रहा है वो, तो वो मॉलिक्यूल कुछ ठीक नहीं है, वो पता चलेगा उनको। अगर yes सपोज फेज 1 क्लियर हो गया तो फेज 2 में जाएंगे। फेज 2 में क्या होता है, उसमें 1000 से कम पेशेंट्स रहते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे पेशेंट रहते हैं, एक्चुअल डायबिटिक पेशेंट रहेंगे। फिर वहाँ पे वो लोग टेस्ट करेंगे कि मतलब कुछ इश्यूज आ रहे हैं कि नहीं, और कितना इफेक्टिव है डोज। yes फिर फेज 3 में जाएंगे। फेज 3 में 10,000 से कम पेशेंट्स हो सकते हैं, 1000 से ज्यादा और 10,000 से कम। और वो अक्रॉस रीजन्स किया जाता है, सिर्फ इंडिया में करेंगे ऐसे नहीं, अलग अलग जगह पे करेंगे। क्योंकि अलग अलग जगह का पॉपुलेशन का एथनिसिटी अलग अलग है। हम लोग yes इंडियंस जैसे दिखते हैं वैसे यूएस वाले दिखते नहीं। उनका बॉडी स्ट्रक्चर, उनका बॉडी केमिस्ट्री अलग अलग है, तो हर कोई अलग तरीके से रिएक्ट कर सकता है वो गोली पे। तो वो तो सब। सर पर एडवर्स हम्म, इफेक्ट में मतलब मेरे को हुआ तो मतलब बाजू वाले को नहीं होता, मतलब अलग अलग बॉडी डिपेंड अपन बॉडी रहता है ना सर, एडवर्स हम्म, इफेक्ट तो हर यस चीज का डेटा लेना पड़ता सर, ऐसा कुछ? यस यस। कोई भी अगर हाँ कुछ भी इंडिविजुअल। सिनारियो होता है तो लेना है, वो भले वो गोली खाने की वजह से हुआ हो या नहीं, वो कंसर्न नहीं है। लेकिन हुआ है तो लेना ही है, उसका डेटा कलेक्ट करना ही है। ताकि अगर आगे जाके सपोज उसका मार्केटिंग अप्रूवल मिल गया, मार्केट में आ गया दवाई, और फिर अगर किसी को कुछ हुआ, किसी की जान भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपको अगर मालूम रहेगा तो मतलब ये क्लिनिकल ट्रायल्स आए ही क्यों ये यस यस मतलब दुनिया में। तो यस आपको, मतलब हाँ अभी ये वो ये कोर्स चालू करने के बाद मतलब आप बेसिक्स बोलेंगे ना सर कि मतलब क्लिनिकल रिसर्च का क्या है, ये बोल के ही स्टार्ट करेंगे शायद। क्लिनिकल रिसर्च, अमित सर आप कुछ बोल No, no, सकते हैं। wait, you have to do first the basic things. That's why we have done previously one demo class on clinical research. So you यस मैम। have to get knowledge regarding the core domain of clinical trials. You have already asked earlier in our demo class, right? So for these SAS course, you have first you have to get knowledge all the details regarding what we are doing in clinical trials, what is the role. Then only you can start SAS. यस मैम। Yeah, because you are right now like pharma graduate, right? यस मैम। So some basic knowledge you have to gain, then you can switch to SAS, because SAS is something, this is one type of domain which is interlinked with the CDM and clinical research. यस मैम। Okay. यस Yeah. दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। उबेद, आप हेलो। एक काम कर सकते हो, चाहिए तो अपना ये गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको मतलब अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगा क्लिनिकल ट्रायल के बारे में क्या यस है। यस 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 यस। थैंक यू हेलो। हेलो। हाँ कहिए। सर। हेलो। कहिए। Sir, how SAS is used in clinical trials, and what is the advantage of SAS in clinical research? See, clinical SAS, I gave the presentation about that only. We have two types of role. One is clinical programmer role, clinical SAS programmer, and one is statistical programmer, SAS programmer role. So Yeah. clinical SAS programmer role is more of reporting profile, edit checks and reporting, where you find out discrepancies between data, different types of data, and that discrepancy is forwarded to clinical data managers so that they can work on those discrepancies and resolve the issues. And clinical statistical programmer is where a particular structure of data is created to be submitted to regulatory authorities like US FDA, EMEA, PMDA and all.
And what Is was it your going other to question? speed up the? Is it going to speed up the clinical trial? This is it going to speed up the accuracy of these clinical trials? Yes, that's why they use SaaS only, because that is most trusted software. Okay. The functionalities that are available here, the results are very reliable, and Right. that's why Right. US FDA also prefers SaaS outputs. Okay. Thank you so much, sir. Yeah. Sir. Hello, sir. Uh, Hello. just Yes, a minute, yes. sir. Sir. There is आवाज few question in chat box. Let me first do that because they have asked so many times. For doing SaaS, we should be from pharma medical background. I am from BE Civil. Can I join SaaS? Uh, yes. See, what I wanted to mention was, if you're focusing mostly on clinical SaaS, it is preferred to have a background in life sciences, but it's not limited to that. There are some colleagues of mine. Can everybody be on mute, please? Yeah, I've seen people in working in clinical SaaS as well who do not have pharma background. And if you're thinking about be in civil and then getting into SaaS, you can always try for another domains as well, like banking and all. Uh, See, now the kind of age that we have in education, earlier there were high demand. There was a phase where I mean, when I was in school, there was a high demand for uh, engineers. Then came the phase where there were high demand for MBA, and now it is the phase of data analytics. So whatever you do, you stay in data analytics only, you'll have a great future. So even if you're be in civil, you can go for SaaS, and you can focus on other domains. Like we have banking domain, we have jobs in banking domain in India. You can get into SaaS as well if you could learn more about clinical trials and all. And that's not very like a rocket science, and you won't understand. If you search, Google it on your browser, you'll get to know clinical SaaS as well. If you want to get into, वही मैंने कहा कि आपकी अगर इच्छा है तो आप कर सकते हो, आपको खुद को होल्ड करके नहीं रखना है। लाइक मैंने खुद का एग्जांपल दिया, मैं बीएससी बॉटनी हूँ, तो मेरा और प्रोग्रामिंग का कुछ लेना देना ही नहीं था, लेकिन आई कुड गेट इनटू SaaS एंड आई मेड माय करियर इन SaaS. आप कितने साल से कर रहे हो कि आप कहाँ जॉब कर रहे हो, मतलब क्या, मतलब आपका एक्सपीरियंस क्या है, थोड़ा बोलिए सर SaaS के बारे में. ओके, मेरा सबसे पहला जॉब जो था वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में था. बोरोसिल ग्लास आपको मालूम है, आपने सुना होगा. हम लोग लैबोरेटरी में यूज करते हैं ब्यूरेट पिपेट्स, Yes, yes. कोनिकल फ्लास्क एंड ऑल. तो Yes, sir. Yes. हाँ, तो वो कंपनी में मैं काम करता था, जहाँ पे हम लोग जो प्रोडक्ट्स आते थे उसको कैटेगराइज करते थे, ए क्लास एंड बी क्लास करके. उसके बाद मैंने क्लिनिकल रिसर्च में पीजी डिप्लोमा किया, और उसके बेसिस पे मुझे एक कॉस्मेस्यूटिकल सीआरओ है अंधेरी में, वहाँ पे मैं जॉब कर पाया. उसके बाद मुझे वहाँ से टीसीएस में जॉब मिला, जो एक क्लिनिकल ट्रायल मैनेजमेंट सिस्टम से, मतलब आपको जितना मालूम है कि SaaS होता है, मेडिकल कोडिंग होता है, Yes, sir. या मेडिकल राइटिंग होता है, सिर्फ इतना ही नहीं है, बाकी बहुत कुछ है. तो मैं टीसीएस में गया, वहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल मैनेजमेंट सिस्टम करके एक सिस्टम था. तो मोस्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो प्लेयर्स है, उन जो क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, उनके पास एक सॉफ्टवेयर होता ही है, जिसमें कैसे होता है, सारी जगह से डेटा आके फ्लो होके वहां से इधर उधर जाना वगैरह, उसमें एक कनेक्शन बना रहता है. तो हम लोग का जो सॉफ्टवेयर था वो कैसे, कि जब क्लिनिकल ट्रायल शुरू होता है तो अलग अलग सेंटर्स पे ट्रायल होता है, अलग अलग हॉस्पिटल्स में ट्रायल होगा, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट्स मिलेंगे. तो वो उनका वो सेंटर को एक नंबर दिया जाता है, उसका नाम और पता रजिस्टर होता है. वहाँ पे डॉक्टर्स कौन कौन है, उनका नाम और पता रजिस्टर होगा. फिर हर एक पेशेंट का नाम, पता और डिटेल्स रजिस्टर होंगे. तो वो जो भी है वो हम लोग मैनेज करते थे वो सिस्टम में. उसके बाद मुझे SaaS के बारे में पता चला, फिर मैंने SaaS में कोर्स किया था, और Yes. वो होने के बाद फिर मैं SaaS में आ पाया. और तो SaaS मैं में, हाँ सर. 2008 से
मैं SaaS में काम कर रहा हूँ। तो कौन सी कंपनी में आप कौन सी इंडस्ट्री में काम करें, कौन सी कंपनी में काम करें सर आप? अभी मैं फिलहाल पैरिक्सल में हूँ, उससे पहले मैं कॉग्निजन में था। तो है अभी तो मतलब आप अपने यहाँ पे प्लेयर्स बहुत है हाँ इंडिया में, मुंबई में। और आजकल कैसे चल रहा है, जितना शिफ्ट हुए हैं कोविड के बाद की, अभी वर्क फ्रॉम होम मिलता है। हाँ सर, और नाइट शिफ्ट भी मिलता फ्लेक्सिबल, होगा सर इसमें? क्या बोल रहे हैं? नाइट शिफ्ट भी मिलता होगा सर, नाइट शिफ्ट और डेट शिफ्ट? नाइट शिफ्ट अलाउंस वगैरह वो सब रहता है, लेकिन अभी अपने यहाँ पे तो नाइट शिफ्ट वगैरह की जरूरत नहीं है, वो दिन में ही काम हो जाता है अपना। ओके अपना इतना एक्सपोजर नहीं है अपने क्लाइंट के साथ कि रात तक बैठो वगैरह, तो वो दिन में ही काम पूरा करना है। सर। अभी तो ये ठीक SaaS जो है CRO में ही यूज करते हैं क्या? अभी जो सर डाटाबेस में काम करते हैं ना, हेल्थ केयर आईटीज बोलते हैं, उधर भी यूज होता है? दोनों जगह यूज होता है, लेकिन SaaS का ये एक डेटाबेस का सॉफ्टवेयर नहीं है कि डेटाबेस मेंटेन रखना। इसका काम है कि डेटाबेस से डेटा उठाना है, उसको मैनिपुलेट करना है, मतलब तोड़ मरोड़ के मैं आपको जैसे चाहिए वैसे रिपोर्ट्स बनाने हैं और सबमिट करना है, बस। इसका काम डेटाबेस मेंटेन रखना वगैरह वो नहीं है। ओके तो सर। एनालिसिस में यूज होता है ज्यादा। ओके, मतलब जैसे ये MNC कंपनी है, एक्सेंचर, TCS, सब लोग SaaS ही यूज करते हैं क्या सर? ये लोग SaaS नहीं यूज करते एक्चुअली। हाँ इनको जहां से कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, मैंने जो कहा कि क्लिनिकल ट्रायल में प्लेयर्स कौन है, मेन प्लेयर्स रहते हैं फार्मास्यूटिकल, जो यस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलप करेंगे वो। उनको इंडिया में काम देना आसान लगता है, क्योंकि यहाँ पे टैलेंट अच्छा है, क्वालिटी मिलता है काम का, और सस्ते में काम करके मिलता है, इसलिए वो लोग इनको सॉफ्टवेयर देते हैं। सॉफ्टवेयर मतलब इन लोग को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि TCS को दिया, एक्सेंचर को दिया, ऐसे। और एक अच्छी बात है अपने इंडस्ट्री की, क्लिनिकल SaaS की, कि अगर आपको मालूम है IT का काम कैसे चलता है, IT का काम कैसे होता है कि कुछ महीनों के प्रोजेक्ट्स रहते हैं कि हाँ चलो मुझे ये सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे दो या ये रिपोर्ट डेवलप करके दे दो, जो यस ऑटोमेटिकली बाद में हम लोग सिर्फ एक बटन दबाएंगे और रन होते रहना चाहिए। तो मैंने 3 महीने का टाइम दे दिया आपको, तो वो लोग यस 3 महीने का टाइम दे दिया, 3 महीने में TCS ने वो सॉफ्टवेयर डेवलप किया या रिपोर्ट डेवलप किया, क्लाइंट को दे दिया, बस कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। फिर बाद में उनको बेंच पे जाना पड़ता है, जो प्रोग्रामर्स है वो, फिर अगला प्रोजेक्ट आने तक उनको मतलब मालूम नहीं रहता कब आएगा, क्या होगा वगैरह आगे। यस लेकिन अपने इंडस्ट्री का कैसे बड़े बड़े मल्टीपल ईयर के प्रोजेक्ट्स रहते हैं, 10-10 12-12 साल। एक ऑन्कोलॉजी, आपको अगर मालूम है, कैंसर के ट्रायल्स जो है, वो ट्रायल ही खुद 5 से 7 सालों तक चलता है। तो उसका उतने टाइम का डेटा मेंटेन रखना वगैरह, तो इसलिए अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं वो काफी लंबे लंबे समय के रहते हैं। तो ये जो CROs है उसका बिजनेस इसके लिए ही आगे बढ़ सका है, क्योंकि अपने कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब आपका लॉन्ग जॉब टर्म के सिक्योरिटी लिए। ज्यादा है, हाँ। और यस अगर कुछ होता भी है तो सबसे एंड में हिट होगा वो अपने इंडस्ट्री को होगा, कि सबसे पहले फाइनेंशियल अगर क्राइसिस कुछ भी आता है, जो 2008 में वगैरह आया था, तो अपना यस इंडस्ट्री है तो सबसे एंड में हिट होगा, अपने को ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। ओके ओके। फार्मा फार्मा जरा सिक्योर है, क्योंकि लोग गोली खाना नहीं छोड़ने वाले हैं, और कुछ ना कुछ आते ही जाता है, जैसे कोविड आ गया, ऐसे काफी सारे डिजीज है जिसके ऊपर ठीक से अभी तक दवाई मिली नहीं है, वो सब रिसर्च चलते ही जा रहा है। तो ये क्या जल्दी कुछ खत्म नहीं होने वाला है, तो आपकी सिक्योरिटी बहुत है ये डोमेन में, क्लिनिकल ट्रायल्स में। और ऑप्शंस भी बहुत है कि आप यहाँ पे नहीं तो वहाँ पे ट्राई कर सकते हो, बहुत सारे प्लेयर्स है मार्केट में। So there is more अभी question. One question is from Harsh that sir, could you explain other career option in SaaS and coding skills required specially? ओके, अदर करियर ऑप्शंस SaaS में अगर जो है वो, अभी मुझे जितना मालूम है, तो मेरे जो दोस्त लोग हैं वो एक तो क्लिनिकल में है या बैंकिंग में है, बाकी और किसी इंडस्ट्री का मुझे इतना ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। और कोडिंग स्किल्स मैंने जो वही कहा वही है, V3 स्कूल्स पे जाइए और पहले जरा ये अपना SQL का थोड़ा देख लीजिए, उससे आपको SaaS सीखने में आसानी होगी। तो SaaS में हम लोग जो कोडिंग करने वाले हैं वो SaaS का खुद का लैंग्वेज है, उसमें कोडिंग होगा। मुझे अभी एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है SaaS के लैंग्वेज का। जैसे SQL का स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज करके है, तो SaaS का खुद का एक लैंग्वेज है, लेकिन वो सिमिलर है, SQL से मिलता जुलता है, तो आपको सिंपल इंग्लिश में जैसे आप लिखते हो वैसे ही लिखना है, वही है कोडिंग। और स्पेसिफिक कुछ कोडिंग के स्किल्स की जरूरत नहीं है। सर ये मेडिकल कोडिंग बोलते हैं ना सर, दोनों सेम है क्या, थोड़ा सिमिलर है क्या सर? मेडिकल कोडिंग और SaaS क्या अलग अलग है? नहीं नहीं,
मेडिकल कोडिंग मतलब क्या होता है कि आपने अगर सपोज उसको मैंने जैसे एक एग्जांपल दिया था, फीवर आया, तो फीवर का जो डिक्शनरी है वहां पे डिक्शनरी फॉलो किया करना पड़ता है। तो उसका फीवर का मतलब आपने फीवर लिखा है, दूसरे किसी पेशेंट का लिखते हुए उन्होंने लिखा कि टेम्परेचर वाज हाई, बॉडी टेम्परेचर वाज हाई, तो ये दोनों टर्म्स का मतलब एक ही है कि फीवर आया है। तो डेटाबेस में जब जाएगा तो आपके दो लाइंस बनेंगे, डेटा सेट मतलब रिकॉर्ड्स दो बनेंगे। एक में आपने लिखा है फीवर, उसका ए टर्म हो गया फीवर, और उसका फिर 4 लेवल का कोडिंग रहता है। 4 लेवल का कोडिंग मतलब उसको कोड असाइन होता है, नंबर का कोड और कैरेक्टर का कोड। तो वो डिक्शनरी से आता है डेटा, वो ये वाला कोडिंग है। और उसके बाद टेम्परेचर वाज हाई का भी ए टर्म हो जाएगा फीवर, और बाकी का कोड फिर वहां से डिक्शनरी से आ जाए, फीवर से रिलेटेड जो भी है वो। तो ये कोडिंग, ये आप जो मेडिकल कोडिंग बोल रहे हो वो ये वाला कोडिंग है कि ओके डिक्शनरी से डेटा उठाना है। और सास का कोडिंग जो है वो एक्चुअली कोड करना मतलब प्रोग्राम लिखना है। अच्छा, एक्चुअली लैंग्वेज है। हम्म। ओके ओके सर, थैंक यू। So there is more question. What is यस। more beneficial, clinical SAS or pharmacovigilance? देखिए अभी मैं खुद तो क्लिनिकल सास में हूँ, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे डिमांड जो है वो बढ़ते ही जा रहा है। मतलब फिलहाल ऐसा क्रंच है कि सास स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर्स ही मिल नहीं रहे हैं, और इतना काम है, इतने अपॉर्चुनिटीज है कि अभी स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर्स अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। तो हर दिन ओपनिंग्स आते रहती है। तो और यहाँ पे मैंने जितना देखा है कि हाईएस्ट पेड जॉब अगर है तो वो क्लिनिकल मतलब सास प्रोग्रामर का ही है हमारे इंडस्ट्री में। हाईएस्ट पेड है, उनको पेमेंट बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा रहता है बाकी कंपेयर टू अदर्स, आपके ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस से। तो मैं तो ये कैलकुलेशन तक पहुंचा हूँ कि आपका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जितना है इनटू 2 lakhs उतना आपका पेमेंट होता है मोस्टली सास प्रोग्रामिंग में। सर इसमें कंपटीशन भी बहुत है ना सर, टेक्निकल के कोर्स भी बच्चे भी आ रहे हैं, हम लोग नॉन टेक्निकल भी जा रहे हैं, बीएससी भी आ रहे हैं, तो कंपटीशन ज़्यादा नहीं है सर? कंपटीशन की बात फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि ओपनिंग्स ही इतनी है कि जो डिमांड है वो ही फुलफिल नहीं हो रही है। आपको और ओके, किसी के साथ ऐसे compete नहीं करना डायरेक्टली जाके कि हाँ वो मेरे सामने बैठा है, मैं एक कोड लिख रहा हूँ उसका कोड लिख रहा है, ऐसे कुछ नहीं है। सब लोग साथ में मिलके ही काम करते हैं। आपके पास ऊपर से कोड्स भी अवेलेबल रहते हैं दूसरे किसी स्टडी से, वो ही आपको यूज करना है। तो मतलब रेफरेंस के लिए आपके पास प्रोग्राम रहता है, कुछ एकदम यस, स्क्रैच से लिखना है वगैरह ऐसे नहीं। कभी कभार हो सकता है कि आपको टोटली एकदम स्क्रैच से लिखना पड़े, लेकिन कुछ ना कुछ रेफरेंस के लिए मिल जाता है, तो आप कहीं पर अटकोगे नहीं। ओके ओके सर, जितना इसमें एक्सपीरियंस मिलेगा उतना हमारा सैलरी पैकेज बढ़ेगा, ऐसा? यस यस, इंटू 2 सब पकड़ के चलिए, फिलहाल तो वैसे ही कैलकुलेशन चल रहा है। दो ओके 4 साल का एक्सपीरियंस है तो 8 लाख का पैकेज होगा ही होगा। ओके। तो मतलब ऐसा देखे नहीं जाएगा कि सर्टिफिकेट है बस और पीछे का डिग्री नहीं देखे जाएगा, क्या टेक्निकल है नहीं है, नॉन टेक्निकल है, ऐसा कुछ भी नहीं देखे नहीं जाएगा? नहीं, वो वही मैं बता रहा हूँ आपको, वो मेरा हाँ शायद सर। वो आंसर आधा ही छूट गया। कि एक फेज था जब लोग इंजीनियर्स चाहते थे, एक फेज था फिर एमबीए आ गया, उसके बाद अभी डेटा एनालिटिक्स। तो अभी कैसे है, अभी आपने देखा होगा एड्स भी कितनी आती है अपने टेलीविजन पे वगैरह कि अपग्रेड से सीखो, यहाँ से सीखो, वहां से सीखो। यस तो यस अभी कहीं पर आपका जो बैकग्राउंड है, डिग्रीज वगैरह, वो सब पीछे छूटता चला जा रहा है। आपके पास स्किल क्या है वो इम्पोर्टेंट हो गया अभी, आपको आता यस क्या है। यस। कि आप भले आप बैचलर ऑफ आर्ट्स हो, मुझे अभी भी याद है मैं जब टीसीएस में था, एक बंदी थी हमारे यहाँ पे जिसने कॉमर्स किया था, बीकॉम किया था, और वो हमारे यहाँ पे मैनेजर थी क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में। वो अभी बैंगलोर में है वो, और वो किसी फार्मा क्लाइंट के पास काम करते। लेकिन वो भी मतलब ये बैकग्राउंड होने के बावजूद भी वो फार्मा इंडस्ट्री में थी। तो आप कितना स्मार्टली खुद को बेचते हो इंटरव्यू में, वो इम्पोर्टेंट है, ना कि आपके पास क्या है। आपको खुद को बेचने को आना चाहिए, जिसमें आई थिंक अपने ग्लोबल फार्मा एकेडमी वाले जो अपने जो असिस्टेंस देने वाले हैं, प्रिया मैम एंड ऑल, तो वो लोग आपको वैसे ट्रेन करेंगे ही कि इंटरव्यू में कैसे फेस किया जाए खुद को वगैरह। यस। Sir, there is more question. One of the question is for fresher, what is the salary package? फ्रेशर्स का आई थिंक अराउंड 3 के आसपास है। अभी अभी तक जो मैंने देखा, अभी एकदम लेटेस्ट मुझे मालूम नहीं है, तो लेकिन लास्ट टाइम मैंने सुना था वो
3 के आसपास है, 3 लाख तक। And yes, sir. One more question. Can you tell me about CDM? It's more into documentation or program type? सीडीएम का डॉक्यूमेंटेशन तो है ही, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको प्रोग्रामिंग नहीं करना है, मोस्टली काम एक्सेल पे वगैरह हो जाता है, या फिर उनका एक सॉफ्टवेयर रहता है क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में। एक सॉफ्टवेयर तो हमेशा रहता ही है जिसमें सब डेटा फ्लो होता है, और वो सॉफ्टवेयर से हम सास प्रोग्रामर्स डेटा उठाते हैं अपने प्रोसेसिंग के लिए। तो उनको उनका जो सॉफ्टवेयर रहता है, उन वहाँ पे ही रिपोर्टिंग का मॉड्यूल रहता है, जहाँ पे वो लोग क्लिक करके नए रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। सीडीएम का मेन जॉब है कि डेटा जो कलेक्ट हुआ है वो सही से कलेक्ट हुआ है कि नहीं। जब जब जो जो बोला गया है कि अभी पेशेंट ने पहला विजिट है और उसका ब्लड लेना है, तो ब्लड लिया गया है कि नहीं, और ब्लड लेने के बाद उसके ऊपर क्या क्या टेस्ट परफॉर्म करने थे वो सब हुए कि नहीं, वो सब इंश्योर करना। तो प्रोटोकॉल के हिसाब से वो सब फॉलो हो रहा है कि नहीं वो देखना है। और अगर डेटा में कुछ डिस्क्रिपेंसी है, अभी कैसे होता है, उनका जो सॉफ्टवेयर है, सीडीएम का जो सॉफ्टवेयर रहेगा, उसमें डेटा जो आता है वो सेंटर से आता है। सेंटर मतलब सपोज हॉस्पिटल में क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, तो वहाँ पे वो जो स्टाफ है हॉस्पिटल का वो सब डेटा एंटर करेंगे वहाँ पे। उसको केस रिपोर्ट फॉर्म बोलते हैं, सीआरएफ। तो उसमें वो लोग सब डेटा एंटर करते जाते हैं। लेकिन उनका ब्लड कलेक्शन वगैरह, यूरिन कलेक्शन रहा जो भी है, वो सब टेस्टिंग होता है, वो किसी और लैबोरेटरी में होता है। तो वहाँ पे उनके रिजल्ट्स बनते हैं। अभी ये जो सब रिजल्ट्स है वो फिर से ये लोग अपने सॉफ्टवेयर में एंटर नहीं करते। तो वो उनको जो डेटा आता है वो किसी और फॉर्मेट में आ सकता है और किसी और सिस्टम में आता है। अभी ये दोनों अलग अलग सिस्टम होने की वजह से दोनों में कंपैरिजन नहीं कर सकते, या रिकंसिलिएशन बोलते कि यहाँ पे उबेद करके अगर एक पेशेंट है और उसका ब्लड कलेक्शन हुआ है 10 तारीख को, लेकिन जो लैबोरेटरी को डेटा दिया गया है उसमें दिखा रहा है वो 11 तारीख। अभी ये दोनों कंपेयर कैसे करेंगे? और ये जो कंपैरिजन है वो हम लोग क्लिनिकल सास प्रोग्रामर करते हैं, जहाँ पे दोनों अलग अलग सिस्टम का डेटा कंपेयर हो सकता है। तो डॉक्यूमेंटेशन तो डेफिनेटली है, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल में ये कहा जाता है कि इफ इट्स नॉट डॉक्यूमेंटेड इट डिड नॉट हैपन। अगर वो डॉक्यूमेंट हुआ ही नहीं है तो वो हुआ ही नहीं है। डॉक्यूमेंट नहीं हुआ तो मतलब वो चीज हुई ही नहीं। इसलिए हर चीज का डॉक्यूमेंटेशन तो होता ही है। सीडीएम में डॉक्यूमेंटेशन है बहुत अच्छा खासा। Sir, I have a question, sir. This is हम्म। Alisha. सर आपने जैसे बोला कि अगर हम डॉक्यूमेंट नहीं करते तो क्या वो केस स्टडी को वैलिड ही नहीं मतलब डिक्लेयर किया जाता क्या? नहीं, अभी कैसे होता है, दो कुछ टाइप्स रहते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन करना भूल गए या कुछ डॉक्यूमेंट करना भूल गए, तो उसके लिए डिविएशन होता है। वो डिविएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक नोट टू फाइल बना के लेते हैं, उसका अप्रूवल वगैरह लेना पड़ता है। लेकिन ये फिर गलती हो जाती है अपने साइड से कि हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करना भूल गए इसलिए नोट टू फाइल बनाना पड़ा। तो वो जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है उनके ऊपर आता है फिर वगैरह, वो काफी सारी चीजें रहती है, नाम खराब होना वगैरह। तो इसलिए बहुत थरो रहना पड़ता है डॉक्यूमेंटेशन के बारे में अपना, मतलब क्लिनिकल ट्रायल में तो है ही। अगर नहीं हुआ है, अपने डॉक्यूमेंट करना भूल गए कुछ चीज, तो वो माना ही नहीं जाएगा कि हुआ नहीं है हुआ है करके। ओके सर, सो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट सर बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन प्रॉपर फेजेस से ही, ट्रायल फेजेस से ही वो शुरू हो जाती है सर। यस यस यस। ट्रायल फेजेस से पहले भी काफी कुछ चीजें होती है, वो प्री क्लिनिकल बोलते हैं उसको। वहाँ पे सर ये जो मैंने जैसे कहा कि मॉलिक्यूल फाइनलाइजेशन वगैरह करना, एनडीए एप्लीकेशन, इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग और न्यू ड्रग ड्रग एप्लीकेशन। डेवलपमेंट के पास यस ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जैसे ही हमको अप्रूवल मिलता है दैट वी आर रेडी फॉर क्लिनिकल ट्रायल फेज, तो उससे पहले हम वो फॉर्म भरेंगे। फिर यस वहां पे जो हायर अथॉरिटीज रहेंगे वो इवालुएट करेंगे कि द पार्टिसिपेट हु आर मींस ज्वाइनिंग द क्लिनिकल ट्रायल्स वो सही है कि नहीं, उनको प्रॉपर एजेंडा प्रॉपर ये दिया जा रहा है। सो यस वो इवालुएशन होने के बाद ही सर स्टार्ट होता है ना, लाइक फेजेस क्लिनिकल ट्रायल्स का जो ओवरऑल केसेस है। यस यस। Okay, sir. Thank you so much, sir. या Sir, there is one more question. How can I get a certificate and training? ओके। अमित सर, आप बताना चाहेंगे? मतलब मैं ग्लोबल सर्टिफिकेशन के बारे में बता सकता हूँ कि हम लोग जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उसके ऊपर हम लोग आपको प्रिपेयर करवाएंगे। और जो ग्लोबल सैस सर्टिफिकेशन है, जैसे मैंने कहा बेस सैस एंड क्लिनिकल एडवांस सैस, तो उसके लिए हम लोग प्रिपेयर करके आपको अच्छा खासा प्रिपेयर करवा सकते हैं। और आपको जाके फिर
SaaS इंस्टीट्यूट के साइट पे जाके रजिस्टर करके उसका एक प्रोसेस है, फिर वहाँ के उनके सेंटर पे जाके वो एग्जाम देना पड़ेगा, जो आई थिंक एक घंटे का रहता है, 40 क्वेश्चंस रहते हैं, मल्टीपल चॉइस। वो होने के बाद आपको फिर सर्टिफिकेट मेल पे आ जाता है, वो बेस सर्टिफिकेशन होगा। लेकिन आई थिंक ग्लोबल फार्मा अकेडमी एक अपना खुद का सर्टिफिकेट भी देती होगी, राइट अमित सर? सर पर जो कंपनीज है कौन सा सर्टिफिकेट पूछते हैं सर? जो मेन उनका सैस वाला पूछते हैं क्या? मतलब ग्लोबल जो भी चल जाएगा, कोई भी चल जाएगा सर? नहीं, अभी कैसे है कि काफी लोग थोड़ा पैसे को लेके थोड़ा ये रहता है कि अभी ये जो है अपना ग्लोबल सैस, ये सैस सर्टिफिकेशन जो मैं ग्लोबल का बहुत बात कर रहा हूँ, वो आई थिंक $200 का है। तो $200 मतलब आप अभी का 18-20 हज़ार के आसपास हो गए। तो कभी कभी वो लोग थोड़ा प्रिफर नहीं करते कि वो करे, या फिर जॉब लगने के बाद जरा बाद में करेंगे वगैरह ऐसे सोचते। तो तब तक अपना जिस इंस्टीट्यूट से आप सीख रहे हो वो भी दिखा सकते हो, वो भी चलेगा। लेकिन अगर वो सर कर पाए तो अच्छी ही बात है, ग्लोबल सर्टिफिकेशन। मतलब वो खुद का सैस का जो सैस की कंपनी है वो खुद प्रोवाइड करते हैं सर? यस ओके। तो उसका अलग से रजिस्टर नंबर ऐसा कुछ पर्टिकुलर आता यस होगा सर यस कुछ यस तो? यस आपका हाँ, तो आइडेंटिफाई। लीगल नंबर रहता है एक, और इवन उनके ओके डायरेक्टरी में आप जाके चेक करोगे तो आपका नाम भी दिखेगा वहाँ पे ओके ओके कि ये दिन पे उन्होंने सर्टिफिकेशन अक्वायर की है करके। ओके। वो तो ऑफिशियल हो जाएगा मतलब। यस यस। सर उसके लिए हमको क्या वही फी स्ट्रक्चर देके वही मतलब सेम वैसे ही हमको आइडिया लेना है क्या वहाँ पे जैसे सर्टिफिकेशन करने के लिए, मीन्स हाँ रजिस्टर्ड होने के लिए? हाँ, वहाँ पे सास इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो फिलहाल बेस सास सर्टिफिकेशन का प्राइस कितना है। तो ओके सर। उनके साथ फिर बुक करना पड़ता है अपॉइंटमेंट, और आपको एक सेंटर दिया जाएगा। अभी आप अगर पूना में हो तो पूना में सेंटर्स हो सकते हैं, वो सेंटर्स को कुछ नाम है वही मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, या फिर प्रोमेट्रिक सेंटर्स बोलते हैं उसको। तो ओके वहाँ सर। पे जा सकते हो, और वहाँ पे जाके एग्जाम देना है आपको, या मुंबई में हो तो मुंबई के मिल जाएंगे। ऐसे काफी सारे हैं जिसके साथ उनका टाइप रहता है, वो ऑनलाइन सर एग्जाम बट ही हम रहते लोग हैं। हम लोग सीख के जाके उधर एग्जाम देके सर्टिफिकेट लेना है सर? मतलब उन लोग सिखाते नहीं है? वो सिखाएंगे नहीं, वो सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करेंगे। ओके ओके ओके। तो मतलब अलग बेस और एडवांस एसक्यूएल ऐसा कुछ तो अलग अलग, मतलब सबका सर्टिफिकेशन अलग अलग होता है क्या सर उनके पास? नहीं, एक बेस सैस का सर्टिफिकेशन है, दूसरा एडवांस सैस का है। और हाँ अभी सर। अगर और एडवांस सैस मतलब ये कंपलसरी है, बेस होना चाहिए, उसके बाद ही आप एडवांस के लिए प्रिपेयर हो सकते हो। ओके ओके हाँ सर। तो फिर दो ही एक है सर अभी तक तो? और एक क्लिनिकल ट्रायल का है, 3 है। ओके ओके ओके, टोटल 3 मैं ये क्लिनिकल के हिसाब से बता रहा हूँ। सैस के अलग अलग मॉड्यूल्स भी है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स भी है, तो उनके प्लेटफॉर्म के सर्टिफिकेशंस अलग है। सर। मतलब ये तो क्लिनिकल साइड का था, मतलब वो हाँ हाँ, आपका ये मतलब क्लिनिकल। हाँ, दूसरा बोले तो बैंकिंग का, और दूसरा तो आप अलग बोल रहे हो ना सर, तो बैंकिंग के लिए वैसा हाँ, बोल रहे हो? बेस और एडवांस जो है वो बैंकिंग में भी चल सकता है। अभी जो हम अच्छा लोग अच्छा आपका कोर्स पूरा कवर करने वाले हैं, उसमें आप अच्छा। बैंकिंग के लिए भी ट्राई कर सकते हो। ओके। तब फिलहाल तो 3 है उसमें मतलब? यस सर। यस। ओके, थैंक यू सर। Sir, there is a question from Nupur. Is knowledge of advanced Excel is useful to learn SAS? नॉलेज ऑफ एक्सेल एक एक्सटेंट तक काम आ सकता है, लेकिन जैसे मैंने फंक्शंस के बारे में आपको बताया कि एक्सेल में आपने अगर एबीसी स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, उसके बाजू के सेल में आपको कैपिटल लेटर्स में चाहिए, तो हम लोग क्या कैसे करेंगे उसको, इज इक्वल टू अपर UPPER ब्रैकेट में फर्स्ट वाला सेल लेना है, ब्रैकेट क्लोज, तो वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी करके आ जाएगा। तो ये कैसे ना, हम लोग ने एक फंक्शन यूज किया अपर नाम का, वैसे सैस में अपकेस नाम का एक फंक्शन आता है। तो ऐसे आप थोड़ा को रिलेट कर सकते हो। लेकिन एक्सेल का कैसे ना, बात ही अलग है, लेकिन उसका लिमिटेशन भी उतना है। अभी अभी 2007 से आई थिंक उसका रोज का काउंट बढ़ा है, 10 लाख के ऊपर गया है, नहीं तो पहले काफी कम था। तो वो एक लिमिट तक ही डेटा प्रोसेस कर सकता है एक्सेल, और वो रिलायबल भी नहीं है कि आप करोगे वो करप्ट नहीं होगा वगैरह। लेकिन सैस में कैसा डेटा करप्ट नहीं हो सकता है, और रिलायबल रिजल्ट्स है, तो वैसे डायरेक्ट कंपैरिजन तो नहीं हो सकता, टोटली डिफरेंट है चीजें। Sir, there is one more question from Divyank. In your course, you will practice us on project works. प्रोजेक्ट वर्क मतलब हम लोग
हमारे पास डेटा है जो ऐसे क्लिनिकल से ही रिलेटेड है ऐसे नहीं है। डेटा है जो आप प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो, जो आपके फंक्शंस या फिर हम लोग जो भी सिखाने वाले हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे अच्छे से, ये अगर करोगे तो। इसके बाद ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद जब आपको जॉब के लिए आगे बढ़ना है, तब हम लोग जब सेशंस लेने वाले हैं, उस वक्त हम लोग प्रोजेक्ट वर्क का प्लान कर सकते हैं कि एक्चुअली आपको जो क्लिनिकल का डेटा वगैरह देना है और उसको प्रोसेस करके कैसे कैसे टेबल्स वगैरह क्या क्या बनाना है उसके बारे में हम लोग बता सकते हैं। लेकिन वो एकदम डिटेल में सेशन या बहुत बड़ा सेशन होगा ऐसे नहीं है, एक आपको आइडिया देने के लिए सेशन होगा। लेकिन हाँ, हम लोग प्रोजेक्ट वर्क के बारे में वो दे सकते हैं उस वक्त, क्योंकि वो काफी हैवी हो जाएगा आपको अभी से ही देंगे तो। पहले तो आपको सैस ही ठीक से सीखना है। अगर सैस सीख गए तो बाद में आपका दिमाग चलेगा कि प्रोजेक्ट वर्क में कैसे परफॉर्म करना है। तो सैस सीखने के बाद हम लोग वो प्रोजेक्ट का डेटा दे सकते हैं, क्लिनिकल ट्रायल का जो डेटा रहता है वो सर भी सर हम। इसमें मस्ट लैपटॉप की जरूरत है ना सर? क्या बिना लैपटॉप के कर सकते हैं सर? नहीं, ऐसी जरूरत नहीं है आपका, सिर्फ आपका सॉफ्टवेयर दोगे क्या सर? क्या विंडोज। मतलब सिर्फ दिखाओगे कि ऐसा ऐसा करना है? नहीं नहीं, सॉफ्टवेयर देंगे हम लोग। विंडोज, आपका विंडोज कौन सा है, 10 है क्या है? हाँ सर, विंडोज 10। हाँ बस काफी है। हाँ सर, मस्ट एंड शुड मतलब लैपटॉप तो चाहिए सर इसमें? नहीं, ऐसी जरूरत नहीं, लैपटॉप ही चाहिए। आप कंप्यूटर भी कर सकते हो, लेकिन आपका सॉफ्टवेयर जो विंडोज है ना, वो अच्छा, विंडोज अगर 10 के ऊपर, सेवन विंडोज 10 के सेवन ऊपर चाहिए। हाँ 7 और 7 के ऊपर रहेगा वो अच्छा रहेगा। ओके ओके। There is one more question. You giving job guarantees or reference? No, Divyank. We as a Global Pharma Academy only give you the assistance. Will guide you throughout the certification course. If you enroll for the certification course, whenever there is a vacancy, we will deliver you. And on the basis of your skill set, you are going to crack the interview. So we are not giving any job guarantee. Okay. Sir, please let me know how is the growth in SaaS? I mean, initially salary, how much? Then after experience, how much? ओके, I think sir have या cleared this question, I think. दिव्यांग, मैं वो जॉब गारंटी के बारे में बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको सिर्फ असिस्टेंस मिलेगा। लेकिन कैसे है ना कि हम लोग जो ट्रेनर्स वगैरह है और ये जो अमित सर एंड ऑल, हमारी जो ग्लोबल फार्मा की टीम है, हमारे कॉन्टेक्ट्स है इंडस्ट्री में। हम लोग अभी भी मतलब जॉब कर रहे हैं तो हमारे अच्छे खासे कॉन्टेक्ट्स है, और किसी ना किसी के थ्रू सब पता चलते ही रहता है कि कहाँ पे ओपनिंग है, कहाँ पे क्या है वगैरह। और वो हम लोग फॉरवर्ड करते रहते हैं हमारे अलग अलग चैनल्स के थ्रू, मतलब सोशल प्रोफाइल्स के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू वगैरह भी पता चलता है कहाँ पे ओपनिंग्स है वगैरह। और फिलहाल दिख रहा है कि मतलब ओपनिंग्स है, तो इट विल बी इजियर टू गेट इन टू सैस, मतलब जो आप चूज करोगे उस वहाँ पे। सिर्फ आपको खुद के ऊपर ध्यान देना है, खुद को उस लेवल तक अपडेट करना है, तैयार करना है कि आप इंटरव्यू क्रैक कर सकोगे। तो इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी आपका प्रिपरेशन है उसमें हम लोग हेल्प करेंगे ही। और हाँ, ये जो है ग्रोथ का आप बात कर रहे हो, तो मैंने जैसे कहा कि इनिशियल सैलरीज 3 lakhs के अराउंड मिल रहे हैं फ्रेशर्स को, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इनटू 2 lakhs, इतना पैकेज लेके चलो आप साल का। 4 साल का एक्सपीरियंस है तो 8 लाख का पैकेज मिलना चाहिए ऐसे। सर इसमें पोस्ट क्या होगा सर? फ्रेशर के लिए कौन सा पोस्ट होगा? एक्सपीरियंस 2 साल के एक्सपीरियंस बाद कौन सा पोस्ट होगा? क्या एक ही पोस्ट रहेगा सर नहीं नहीं, इंडस्ट्री वो में? अलग अलग पोस्ट रहते हैं। ये पोस्ट मैं ना ठीक से डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अलग अलग कंपनी का पोस्ट जो डेजिग्नेशन रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं। जैसे अभी आप कॉग्निजन की सोचोगे तो हाँ सर। ट्रेनी जूनियर डेटा एनालिस्ट करके पोजीशन रहता है। ट्रेनी जूनियर डेटा एनालिस्ट, ये एकदम फ्रेशर वाला पोजीशन है। उसके बाद वो जूनियर डेटा एनालिस्ट हो जाता है, ट्रेनी निकल जाता है। फिर ओके जूनियर डेटा एनालिस्ट से वो डेटा एनालिस्ट बनता है, थर्ड पोजीशन। डेटा ओके एनालिस्ट से वो एनालिस्ट बनता है। एनालिस्ट से सर। फिर वो एसोसिएट एनालिस्ट मतलब टीएल बनता है। एसोसिएट एनालिस्ट से सीनियर एसोसिएट एनालिस्ट बनता है, मतलब टीम मैनेजर। सीनियर एसोसिएट एनालिस्ट से फिर वो आगे चल के एसडीएम वगैरह, मतलब मैनेजर्स, मतलब वो लेन में आगे चला जाता है फिर मैनेजर्स वगैरह पोस्ट। ओके ओके, मतलब एंड तक जाके मैनेजर तक पोस्टर्स है सर, इसके हम्म। एक्सपीरियंस बेस के ऊपर ही उन लोग को दे जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। ओके।
There is a last question, sir, from students. After learning from course, we need to registration for that exam. How much fees is it? Is it difficult exam? ओके ये जो कोर्स होने के बाद मैं जो ग्लोबल SaaS सर्टिफिकेशन की बात करूँ उसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आई थिंक उसका $200 प्राइस है, तो 200 इंटू अभी जो डॉलर का प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से 16-17,000 तक जाएगा वो एग्जाम। और हाँ, आपको रजिस्टर करके प्रॉपर जो प्रोसेस है वो फॉलो करना पड़ेगा। के लिए भी हम लोग देख सकते हैं, मतलब सब इन्फॉर्मेशन SaaS इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे ही अवेलेबल है, आप खुद भी देख सकते हो। और डिफिकल्ट मतलब आप अगर ठीक से सीखे हो, प्रैक्टिस किए हो तो आप क्रैक कर सकते हो। उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं और वो भी SaaS डम्प्स करके हम लोग अगर सर्च करते हैं तो क्वेश्चंस आते हैं, उससे सिमिलर क्वेश्चंस ही रहते हैं वहाँ पे। तो जितने भी डम्प्स अपने पास अगर अवेलेबल हो जाते हैं वो आप प्रैक्टिस करोगे तो आई थिंक यू शुड बी एबल टू क्रैक इट। सर कितने अटेम्प्ट रहेंगे सर? अभी 21,000 हम लोग पे कर दिए बेस के लिए, तो कितने अटेम्प्ट में हम लोग को ये करना पड़ेगा? क्या हम लोग कभी भी कर सकते हैं एक बार में होने एक के ही लिए? अटेम्प्ट है, एक बार में एक ही अटेम्प्ट है, फिर से आपको बाद में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे नहीं है कि रजिस्ट्रेशन के लिए फीस फिर से, अलग से देना पड़ेगा? हाँ फिर से देना पड़ेगा वो। ओके ओके। मतलब अभी ऐसा कुछ तो कितने मार्क्स का रहता, कितना मतलब कट ऑफ लाना है उसमें, ऐसा कुछ पता है क्या सर? आई थिंक 80% है पासिंग उसका। मतलब तो 100 में 80 परसेंटेज लाना है? हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, तो ही मतलब रजिस्टर हो जाएगा, नहीं तो नहीं? तो ही आप वो एग्जाम पास हो गए ऐसे। ओके ओके ओके, मतलब डिफिकल्ट है सर थोड़ा। हम्म। हाँ, क्योंकि वो उतना क्वालिटी मेंटेन रखते हैं ना, फिर नहीं तो कोई भी आके SaaS प्रोग्रामर बन गया ऐसे नहीं है ना, उनको भी वो तो भी उतना सही है सर, क्वालिटी मेंटेन रखना है सही कि है, सही है सर, पर अटेम्प्ट तो थोड़ा ज्यादा देना चाहिए, तो मतलब एक ही अटेम्प्ट में नहीं नहीं थोड़ा। नहीं, ऐसे नहीं है, मतलब आप बाद में कर सकते हो अटेम्प्ट फिर से, आपको लेकिन फीस भरना पड़ेगा। एक बार वही सर फीस बोल रहा हूँ। भरने के एक ही अटेम्प्ट मिलेगा ऐसे। मतलब 21,000 मतलब बेस के लिए, तो एक बार फेल हो गए तो नेक्स्ट बार 21,000 फिर से भरना पड़ेगा? हाँ हाँ, ओके वैसे। ओके ओके। सर कितना टाइम बाद मतलब दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ है टाइम फ्रेम? नहीं, टाइम फ्रेम का तो मुझे मालूम नहीं, और नहीं लगता मुझे वैसे कुछ रहेगा। आप दे सकते हो एक आध हफ्ते बाद भी। हेलो सर। ओके सर। हाँ कहिए। अभी यस। हम फाइनल ईयर स्टूडेंट है बी फार्म के। हम्म। तो क्या हम आपका कोर्स वो रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे या आप रेगुलर ऑनलाइन क्लास लेंगे? कैसा रहेगा आपका शेड्यूल वगैरह? नहीं, हम लोगों ने रिकॉर्डेड सेशंस नहीं रखा है आपको। अभी फिलहाल जो हम लोग के सेशन चल रहे हैं वो हफ्ते में 3 बार चल रहे हैं, सुबह 7 से 9। हाँ और सर। तो वहाँ पे हम लोग खुद ही मतलब सेशंस ले रहे हैं, और भी कुछ ट्रेनर्स है। तो मतलब ऐसे रिकॉर्डेड सेशंस नहीं है, आपको 7 to 9 ओके सर, सुबह। लेकिन हमारे दिन में हमारी क्लास रहते हैं ना कॉलेज के, हम्म। तो वो कैसे मैनेज क्या मतलब आपका संडे सैटरडे में होगा या कैसे? संडे सैटरडे का अभी तक तो बैच कोई हुआ नहीं है, तो लेकिन हम सोच सकते हैं जैसे स्टूडेंट्स का प्रेफरेंस रहेगा। अभी एक बंदे कोई प्रॉब्लम है और बाकी के अगर मतलब आपका 7 to 9 होता नहीं है क्या फ्री आपके पास टाइम? 7 to 9 AM का सर, या यस, PM? एम एम। हाँ, 7 to 9 AM कर सकते हैं सर, सुबह। हाँ वही, इसीलिए हम लोग ने मतलब हमारे अभी भी कुछ स्टूडेंट्स है जो ये फार्मेसी वगैरह कर रहे हैं, तो हम लोग 7 to 9 प्रेफर किया हुआ है। सुबह 7 से 9 हम लोग क्लासेस लेते हैं। ओके सर, ओके ठीक। सर आप भी अभी 10-15 साल से सैस में हो सर, मतलब आप आपके कलीग्स हो सब क्या, मतलब वो सैस जो आप बोले सर्टिफिकेशन वो है क्या, बिना सैस के चल रहे सर, ले रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं कंपनी में? नहीं, मोस्टली मेरे जो कलीग्स है वो सब SaaS सर्टिफाइड ही है। हाँ कुछ लोगों ने मतलब एडवांस SaaS काफी कम लोगों ने किया है, लेकिन बेस SaaS सर्टिफाइड तो है ही एटलीस्ट। ओके ओके, मतलब आपका जो बोले ना सर मेन सैस से वही सर्टिफिकेट से है? यस 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 यस। हाँ, आप आपका भी वही हुआ है सर? हाँ, मेरा एडवांस हो चुका है। अच्छा, मतलब क्लिनिकल भी हो गया क्या सर आपका? नहीं, क्लिनिकल मैंने नहीं किया है। एक्चुअली क्लिनिकल की उतनी जरूरत नहीं है। अगर ओके आप टोटली फोकस्ड हो कि क्लिनिकल में ही रहना है तो आप कर भी सकते हो। ओके, लेकिन एक मतलब बार एक लेवल तक आ गए तो उसके बाद मतलब कोई ज्यादा पूछेगा भी नहीं कि SaaS सर्टिफिकेशन हुआ है कि नहीं। ओके, मतलब एडवांस मोर देन इनफ है? हाँ, एडवांस काफी है। ओके ओके, थैंक यू।
ओके, और कुछ तो क्वेश्चंस? सर एडवांस का क्या है, एडवांस सेल्स का जो सर्टिफिकेशन है हाँ, उसका एडवांस क्राइटेरिया सेस, तो आपने बताया कि बेसिक जरूरी है उसके लिए पहले, है ना? यस, बेस सेस क्लियर करना जरूरी है आपको, बेस सेस एग्जाम, यस सर। उसके बाद तो मतलब एडवांस। सर जैसे बेस सेस है उसके बाद एडवांस हमको कब प्रेफर करना चाहिए करने के लिए? हम्म। मैं रेकमेंड हाँ करूंगा कि सर। अगर बेस क्लियर हुआ तो एडवांस कर दीजिए आप। अच्छा सर, तो उसमें सर कैसा रहता है, मतलब क्या एग्जाम डिफिकल्टी लेवल और वो क्या रहता है, फीस वो स्ट्रक्चर भी वगैरह? सिमिलर वैसे ही रहेगा जैसे आपका बेस है, वैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही रहते हैं, एक घंटे का रहता है, और आई थिंक 40 क्वेश्चन, 40 या 60 क्वेश्चन कुछ रहेंगे। आपने जो भी सीखा है उसके ऊपर ही रहेगा। उसके लिए भी हम लोग डम्प्स वगैरह सर्च कर सकते हैं, तो डम्प्स में एक्चुअली कुछ ऑनलाइन पीडीएफ मिल जाते हैं जिसमें क्वेश्चंस रहते हैं। उनके क्वेश्चंस ना चेंज होते रहते हैं हर साल या कुछ तो है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। तो हमें पुराने किसी ने अटेम्प्ट किया है और उसने ऑनलाइन अगर रखा है सैस डंप्स, तो वहां से एक आइडिया मिल जाता है कि ये टाइप के क्वेश्चंस है। सर अभी तो सर जैसे मोस्ट, एडवांस लेवल, क्या बोल रहे हैं? सर ये जो एडवांस लेवल जैसे होता है बाद में बेस के हम्म बाद, हम्म। तो सर इसमें मतलब मेनली ऐसा होता है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह उसका डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता है, इस तरीके से ऐसे कुछ क्वेश्चन से नहीं नहीं रिलेटेड? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने जो सीखा है उसके ऊपर ही रहेगा, इसमें डिफिकल्ट, ज्यादा डिफिकल्ट वगैरह ऐसा नहीं है। आपने जो करिकुलम सीखा है उसके ऊपर ही क्वेश्चंस रहेंगे। ओके सर। सर अभी मोस्ट ऑफ एमएनसी कंपनी मतलब बेसिक देखते हैं सर, हम लोग एडवांस वो सब देखते नहीं, बेसिक रहा तो प्रेफर कर लेते हैं सर हम हाँ हाँ, लोग। तो वही मतलब बेस तो कर लीजिए, एंट्री मिलने के बाद कुछ साल सैस पे काम करने के बाद फिर एडवांस कर सकते हो आप। मैंने भी वैसे ही किया, मैंने बेस सैस पहले कर लिया था और फिर ऑलमोस्ट 4 साल बाद मैंने एडवांस किया। अच्छा सर, जैसे अब हम जैसे इसके लिए करते हैं बेस सर्टिफिकेशन वगैरह, तो सर जैसे हायर एजुकेशन भी डिग्री कुछ प्रिफर करने की जरूरत है या मतलब ऐसे ही सही है? नहीं नहीं, वही मैंने कहा ना कि अभी फेज अलग चल रहा है एजुकेशन का या जॉब्स का वगैरह। आपके पास स्किल सेट क्या है वो इम्पोर्टेंट है आपके डिग्री से ज्यादा। तो स्किल सेट्स आपके जो है कि आपको सास आता है तो आप सास में घुस सकते हो, आपकी डिग्री क्या है वो वगैरह कोई नहीं देखेगा फिर। हाँ सर, घुस सकते हैं। जैसे आपने ये कहा था ना कि जैसे मतलब एनालिस्ट आता है, फिर जैसे डेटा एनालिस्ट आता है जूनियर, और सर उसके हम्म बाद फिर डेटा एनालिस्ट आता है, ऐसे मतलब जैसे प्रमोशन होता है। हम्म। तो उसके रिगार्डिंग में पूछ रहा था, जैसे डिग्री प्रेफर करते होंगे, नहीं नहीं नहीं, मास्टर्स ऐसे कुछ नहीं, ऐसे। वहां पे फिर आप कैसे परफॉर्म करते हो वो इम्पोर्टेंट है और सर वहां पे। एक्सपीरियंस नंबर ऑफ इयर्स? हाँ, वो अभी हर एक कंपनी का क्राइटेरिया रहता है कि 1.5 साल बाद प्रमोशन देना है। अभी कॉग्निजन में कैसे अच्छा। ट्रेनी जूनियर डेटा एनालिस्ट ये पोजीशन पे आप ज्वाइन करोगे, 1 साल बाद आप ऑटोमेटिकली जूनियर डेटा एनालिस्ट बन जाओगे, ऑटोमेटिक प्रमोशन। वहाँ पे कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है, डायरेक्टली 1 साल बाद जेडीए। फिर जेडीए से आगे का जो आपका जर्नी है वहाँ पे आपके हर साल रेटिंग्स आते हैं आपके हम्म। परफॉर्मेंस के हिसाब से, और उस हिसाब से फिर प्रमोशन मिलता है। फिर वो 2 साल बाद, 2-2 साल बाद शायद प्रमोशन रहता है वो, हर 2 साल बाद। ओके सर, ओके। वो हर एक कंपनी का क्राइटेरिया अलग रहेगा प्रमोशन के लिए। Okay, sir, there is no more question from student. ओके, Sir, Amit sir, are you there? Yes, I'm here. You want to deliver something to students? Yes, I. So most of the questions like how's the SAS and everything. I hope you all understood SAS clear that the clinical SAS, which kind of knowledge you need to be important, because see this is a technical everything. So once you like come to know about some software, how is it works, a technical knowledge. So this is like you are right now gaining from theoretical short information from our trainers, right? But once you get information about the basis, you come to know actually how it works, and the things are it's like a maths. You have to continue do the programming in for like a task on this continuously. You have to like repeat the thing so that you come to know actually how it works.
this is how it is the SaaS is. Okay, so before like going to any domain, not only SaaS, you must have to learn in depth about that information so that you should be more professional according to the industry requirements. So for that reason, we also, as a Global Farm Academy, conduct certification course like from in so for 6 months that about the SaaS. Okay, where we will cover the base SaaS and advanced SaaS. Okay, so we'll just inform about that course as well. So Alicia, can you share the screen and share that information about our course? Sure, sure. I'm facing some issues, sir, from my end. I will share in the group of the webinar group with the details. If anyone want to enroll for the course, they can directly contact us as well. Wait, I will try possible share. No, I'm not able to this. Oh, okay, no issue. I will share this information just verbally. I'm telling you. Okay, we will conduct 6 months of course in the SaaS where we cover the base SaaS and advanced SaaS. Okay, and most of the time we are like this course will be more informative for everyone who want to do the career in the SaaS, and there are lots of things we are covering here. Base SaaS, that is the SaaS windows, then SaaS syntax we are covering, referring files and setting options, then SaaS libraries, creating SaaS data setup with from raw, SaaS macro we are covering here. Okay, SaaS SQL we are covering here, and overview of the SaaS, no, clinical research. Okay, so this course is totally on the SaaS, that base SaaS and advanced SaaS, where you come to know everything which is needful from the industry end. So if you want to do the career in the SaaS, you need as I said earlier, you need to get the depth knowledge about technical knowledge about this. So we are providing this. If you are really interested for this, our next batches, with the date is not still announced, but might be started from the February end. We will share the details once we confirm the dates of the announcing, but we'll share all information in the group of the webinar where you can get all information from us. And if you want to do, just connect with our student coordinator. Okay, so we'll share the further details. Okay. So any query for our SaaS program, that SaaS course? This is the 6 month of course, and we are delivering the lectures on Monday, Wednesday, and Friday. That is the weekdays. Mostly the time will be the morning 7 to 9, and the 2 hours of the session. And this session is not. We are not providing recordings for this because this is technical. So you have to be there, present in the class. Then only you can come to know understood this. And we are giving you the task on after the completion of the class, so that you will individually also prepare for the next session. Our trainers will guide you, and they will solve your queries as well. But we also prepare at the same time for the interview purpose, how you prepare accordingly. Okay, so basically this information we will provide for the industry experts who have very good knowledge in the SaaS, a huge experience as well. So this will be definitely beneficial for all of you. Okay, so that's it for about the course information. But about this webinar, I hope this our trainer will deliver everything properly, and you got to know everything clearly about the SaaS, and your queries might be solved.
You still have any query? You can ask. 2 minutes wait. About the course, about this. Sir, what is the fee structures of this course? Yeah, fees will be as I say earlier that our platform will be the most affordable all over. Like we are giving the prices so that everyone can at least afford these things. The SaaS fees is right now the 55,000 for the next batch, and this Okay, is the thank you. 6 months. Yeah. 55,000 सर. Yes, 55,000. ओके सर. ये इसमें बेस और एडवांस दोनों भी आ जाएगा. Exactly, base and advance. दोनों आ जाएंगे. ओके I विद will share the सर्टिफिकेशन. details in the group. Okay, each and everything जो cover होता है, so that you will come to know.